morning, good morning. Sit down, have your seats. How are you all? You all are fine. Very good. Your ma'am is also fine. So tell me, what is the date today? Oh, today is 15th of May 2023. Okay. So, आज किसी बच्चे का बर्थडे तो नहीं है? नहीं है किसी बर्थडे का. It's okay. Otherwise, I give party to that child. And tell me, how many students are in this class? 40. Okay. And how many students are present today? Tell me, everyone. 38. Okay. And how many students are absent today? 2 students. Okay. And today I am going to teach you EVS. What? EVS. Students, don't make noise. So student, I want to ask you some questions. Will you all answer me? Yes, you all will. Very good. So tell me, how was your day yesterday? Tell me one by one. Anand, you tell us. Oh, your day was not good. Why? Oh, because you are not feeling well. Okay, it's okay, beta. Sit down. Now, Prachi, you tell us. Oh, your day was very good because you got selected in football team. That's a good thing. Sit down. Now, Sandeep, you tell us. How was your day? Oh, your day was not that much good or that much bad. Okay था. Okay. तो स्टूडेंट्स, हम सबके डे कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, है ना, और कभी मतलब नॉर्मल होते हैं, बोरिंग टाइप के भी होते हैं. सो डू यू ऑल वांट टू डू अ लिटिल क्रिएटिव एक्टिविटीज अबाउट फीलिंग्स? यस, यू ऑल वांट टू. ओके, सो स्टैंड्स अप एवरीवन. ओके, संदीप बेटा सही से खड़े हो, धक्का मत दो किसी को. ओके, सो रिपीट आफ्टर योर मैम. ओके. Sometimes you feel happy, sometimes you feel sad, sometimes you feel happy, sometimes you feel sad, sometimes you feel excited, or sometimes you feel mad, sometimes you feel excited, or sometimes you feel mad. You might be laughing, you might be crying. You feel so many different feelings, but that's all okay. But that's all okay. So student, what we learn through this poem? We learn कि कभी हम खुश होते हैं और कभी हम दुखी होते हैं. Sometimes we laugh और sometimes we cry. हम बहुत सारी different feelings को महसूस करते हैं. But everything is okay. Every day is a new day और हर day हम कुछ ना कुछ new सीखते हैं और न्यू फीलिंग्स को महसूस करते हैं. सो दैट्स वाई हमें अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए और हमेशा लर्निंग करती रहनी चाहिए. वेरी गुड स्टूडेंट. सो स्टूडेंट, टेल मी, जो आप सब फीलिंग्स को महसूस करते हैं, लाइक सैड, हैप्पी, एक्साइटेड, एंड जो भी चीजें आप करते हैं दिन भर में, डू यू हैव एनीवन टू शेयर विद दीज फीलिंग्स? ओके, आनंद, यू हैव योर बाजी. ओके, विद योर बाजी यू फील ऑल योर फीलिंग and everything. Okay. And Sandeep, आप किसके संग शेयर करते हैं? You share with your daddy. Okay. And Prachi, you tell us. Oh, you share with your brother. Okay. So in today's class, we are going to learn and some do creative activities about sharing our feelings. Sharing our feelings. So student, there is a girl and the name of that girl is Lali. Lali is went to school like you all. और आप सबकी ही तरह वो बहुत प्यारी और क्यूट सी बच्ची थी. After returning the home, she used to tell all the things and share all the feeling with her Raju भैया. Raju भैया is her big brother. जिस तरीके से आनंद अपनी बाची के संग सबको शेयर करते हैं और संदीप आप किसके संग शेयर करते हैं? डैडी के संग ना. हाँ, और प्राची अपने ब्रदर के संग. इन द सेम वे लाली यूज्ड टू शेयर ऑल द थिंग्स विद हर बिग ब्रदर. So Raju Bhaiya is a very good person. He is very kind, loving and very hardworking. And also he is very intelligent. और he always help Lali to do her homework. और लाली जब भी कोई क्वेश्चन आस्क करती थी, he is always ready to answer it. But Raju Bhaiya carry a stick, a white color stick, wherever he go outside. क्या थी उनके पास? एक white color की stick थी. तो
student, do you know anyone who carry a stick with her or him? Anyone? Akash, okay, tell us. Oh, your grandpa carry a stick. Why? Because he is so old. That's why he need a stick to support. Okay, stick के support से walk करते हैं. Okay, anyone else? हाँ फिजा, आप बताओ बेटा. अच्छा, आपकी बिग सिस्टर भी स्टिक यूज करती है. वाई? अच्छा, उनकी पैर में कोई प्रॉब्लम है. That's why she needs stick to walk. Okay, I want to tell you one more thing. Raju भैया used to wear black glasses. What? Black glasses. Anybody can tell me कि वो black glasses क्यों यूज करते थे? हाँ, प्रकृति बताओ बेटा. To protect his eyes from the sun. Okay, it can be the reason. We will consider it later. Okay. So anyone else? देखो वो स्टिक भी यूज कर रहे हैं और ग्लासेस भी यूज कर रहे हैं. Anyone else? हाँ आनंद आप बताओ बेटा. Oh, glasses help him to see. Very good बेटा. Sit down. So राजू भैया used to wear glasses because glasses are help him to see. So I will tell you कि why वो इन दोनों चीजों को यूज करते थे. Because he is blind. So through the help of stick, he feel the surface. As we all can see now, you can see what ma'am is doing, what ma'am is writing on the blackboard. You all can see it, but Raju भैया can't see. तो जब वो वॉक करते थे उनके बीच में अगर कोई चीज आए तो ऐसे अगर वो वॉक करते रहे आंखें बंद करके, आप सब लोग करके देखना तो क्या होगा, वो टकरा जाएंगे उससे. ऐसा ही तो होगा. बट विद द हेल्प ऑफ स्टिक वो उस चीज को महसूस कर लेते थे और उससे बच के वो चले जाया करते थे. और जो ग्लासेस होते हैं वो हमारे विजन को मैक्सिमाइज करते हैं. क्या करते हैं? मैक्सिमाइज करते हैं. So student, do you all want to understand the situation of Raju Bhaiya? Okay, you all want to. So we can understood it with the help of activity. So for the activity, Prakriti, come here. Okay, now I am going to blindfold you and touch it and tell me what it is. Okay, this is watch. Very good, beta. Go and sit on your seat. Okay, now Akash, you come here and I am going to blindfold you and tell me. What is this? Touch it first and tell me. Oh, this is tester. Very good, beta. Now sit down on your seat. So, हम लोगों ने बच्चों क्या देखा कि मैंने आकाश और प्रकृति को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया था. इट मीन दे कांट सी, बट सो उन्होंने अपने टचिंग सेंसेस के थ्रू रिकॉग्नाइज कर लिया कि वो क्या है. सो इफ आवर वन सेंसेस इज नॉट वर्किंग, सो द अदर सेंसेस विल इनहेंस और वो मोर शार्प हो जाते हैं. लाइक हियरिंग, smelling and touching. Like and touching. अभी हम लोगों ने टचिंग का तो एग्जाम्पल देख लिया है ना. नाउ वी आर गोइंग टू डू अ एक्टिविटी ऑन स्मेलिंग. सब लोग अपने अपने टिफिन डेस्क पे निकाल के रखो. कोई भी उसे ओपन नहीं करेगा. सबने रख लिए. ओके, नाउ क्लोज योर आईज एवरीवन. नाउ ओपन योर टिफिन एंड स्मेल इट एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज व्हाट इट कैन बी. एवरीवन, सब लोग स्मेल करो. ओके, आनंद आपके टिफिन में क्या है बेटा? खिचड़ी है. ओके, लेट मी सी. ओ, आपने बिल्कुल स्मेल करके सही रिकॉग्नाइज किया. आपके टिफिन में तो खिचड़ी ही है. और फिजा आप बताओ बेटा, आपके टिफिन में क्या है? आपके टिफिन में आलू का पराठा है. अच्छा, लेट मी सी. ओ, आपकी स्मेलिंग पावर तो बहुत तेज है. आपने बिल्कुल सही रिकॉग्नाइज किया है. सो स्टूडेंट सी, जब हम लोग देख नहीं सकते हैं तो हम क्या टचिंग के थ्रू और स्मेलिंग के थ्रू चीजों को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं ना. हाँ, हम कर पा रहे हैं. इसी तरीके से हम हियरिंग के थ्रू भी चीजों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. क्लोज योर आईज एवरीवन. क्लोज योर आईज. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू change my position. Okay, and I am speaking from that position. Now you all have to turn your face in that position. टर्न योर फेस. ओ, वेरी गुड. आप लोगों ने अपने फेस बिल्कुल राइट पोजीशन में टर्न किया. आप सबको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ खड़ी हूँ? किस तरीके से पता लगा? जस्ट बिकॉज ऑफ हियरिंग. आप सब लोग तो देख नहीं रहे थे. इट मीन्स कि अगर कोई किसी पर्सन के कोई एक सेंसेस वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो अदर सेंसेस के थ्रू उनका यूज करके अपनी डेली लाइफ को आराम से गो थ्रू कर सकता है ना. यस और नो? यस. तो इन द सेम वे राजू भैया डू हिज डेली एक्टिविटी बाय हिज ओन. और कोई भी उनकी जब हेल्प करता था और ना उनकी मर्जी के बिना तो उन्हें बहुत बुरा लगता था. और उन्हें जब भी किसी चीज की हेल्प चाहिए होती थी वो आस्क कर लेते थे. So student, I am going to write something on the blackboard and you all have to tell me what it is. Okay? Tell me. If you can't pronounce it, just जो letters लिखे हो उनको बताओ क्या लिखा है. L. Okay, this
O, उसके बाद क्या है UIS, ओके लुइस. एंड व्हाट इज दिस BRAILLE means Braille, Louis Braille. Okay, now everyone close your eyes, everyone, and again I am going to write something on the blackboard and you all have to tell me what I am writing on it. Can you tell me कि मैम ने क्या लिखा होगा ब्लैकबोर्ड पे? No, you can't tell me. Okay, why? क्योंकि आप लोग को तो दिखाई नहीं दे रहा है, आप सबके आईज क्लोज हैं. ओके, now open your eyes. Now you can see. Okay, you can see कि मैम ने क्या लिखा है, ब्रेल स्क्रिप्ट. ओके, सो स्टूडेंट सोचो जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो कैसे रीड और राइट करते होंगे. एंड जो राजू भैया थे वो तो बहुत इंटेलिजेंट थे. ही लव टू रीड एंड राइट, और वो कॉलेज नहीं जाया करते थे. सो थिंक करो वो किस तरीके से रीड और राइट करते होंगे. एनीवन वांट टू टेल मी? ओके, हाँ प्राची आप बताओ बेटा. ओ, वो ऑडियो फॉर्म में रीड कर सकते हैं बुक्स को. वेरी गुड बेटा. राजू भैया ऑल्सो यूज टू डू रिकॉर्डिंग्स. वेरी गुड बेटा. सो राजू भैया भी क्या करते थे, वो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू बुक्स को रीड किया करते थे. बट देयर इज अनदर वे एंड देन दैट वे इज ब्रेल स्क्रिप्ट. ब्रेल स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड पीपल एंड इट इज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल. एंड आई वॉन्ट टू टेल यू फन फैक्ट. जो लुइस ब्रेल थे वो खुद भी ब्लाइंड थे. और तो सोचो बच्चों, वो ब्लाइंड होते हुए उन्होंने एक स्क्रिप्ट इन्वेंट की. स्क्रिप्ट मीन्स द वे ऑफ राइटिंग. सो इन द ब्रेल स्क्रिप्ट all the letter represented on a paper in the pattern with the help of raised points, and there is 6 dots or points in braille lipi. How many? 6, like this. 1 2 3 4 5 and 6. अच्छा, हम अपने इंग्लिश अल्फाबेट्स को किस तरीके से लिखते हैं? लाइक दिस वे लिखते हैं ना, A B and C. इसी तरीके से लिखते हैं ना. इन्हीं अल्फाबेट्स को अगर हम ब्रेल स्क्रिप्ट में राइट करना चाहें तो ब्रेल स्क्रिप्ट में ए को हम 1 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, बी को हम 2 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और सी को भी 2 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो स्टूडेंट अब आप ये बोलेंगे मैम ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है कि इसमें भी 2 डॉट्स हैं और इसमें भी 2 डॉट्स हैं, हम बी और सी में किस तरीके से डिफरेंस करेंगे, है ना. ओके, सो आप देखो यहाँ पे जो 2 डॉट्स हैं वो कैसे हैं, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? वो हॉरिजॉन्टल है. और सी के जो 2 डॉट्स है वो कैसे है, वो वर्टिकल है. सो स्टार्टिंग में हमारे लिए भी एबीसीडी बहुत कठिन थी ना. कठिन थी नहीं थी? हाँ थी, सबके लिए कठिन थी. सो स्टार्टिंग में जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है वो भी कठिन होती है, बट आफ्टर प्रैक्टिस वो हमें बहुत इजी लगने लगती है. तो जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनको भी बाद में ये बहुत इजी लगने लगती है. और जो एक पेपर पे डॉट्स के थ्रू उसको बनाया जाता है, जस्ट पीपल क्या करते हैं अपने फिंगर्स के उसके ऊपर रन करते हैं हल्के हाथ से, और वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये ए लिखा है या फिर ये बी लिखा है और या ये सी लिखा है. So students, have you all understood it? Okay, you all understood it. Okay. So students, I am giving you a homework and you all have to do it. You have to write your name in braille script with the help of bindis. और बिंदीज आप किससे मांगेंगे? मॉम से मांगना, अपनी बिग सिस्टर उससे मांगना और उसकी हेल्प से अपना नेम राइट करना ब्रेल स्क्रिप्ट में. ओके ओके, तो आपका होमवर्क है, आप सब लोग नोट कर लो. राइट your name in braille script with the bindis. So will you all do it? Yes, you all will. Okay, very good. So that's all about this video. I hope this video is helpful for you. Bye.